नमस्कार बच्चों, 12th क्लास बायोलॉजी केवी बुलंदशहर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ठीक है, 4 चैप्टर अब आप पढ़ चुके हैं ना। इट मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स फर्स्ट यूनिट, इट हैज हाउ मेनी चैप्टर्स? 4 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। रिप्रोडक्शन यूनिट के 4 चैप्टर आपके खत्म हो गए। नाउ टुडे वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस जेनेटिक्स second part of your book. This is second unit and it contains 3 chapters. Genetics, principle of inheritance and variation. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी में एक और थर्ड पार्ट होगा एवोल्यूशन पढ़ना है। इसका मतलब जेनेटिक्स यूनिट में आपने 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद नेक्स्ट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर इसी का थर्ड है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ना है? आज आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये चैप्टर है 5। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? दिस इज चैप्टर 5 एंड इट्स नेम इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से भी बहुत सारे इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। जो टॉपिक्स आपने इसके अंदर पढ़ने हैं वो है टॉपिक्स Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of 2 genes, sex determination, mutation and genetic disorder। ये इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ sex determination, mutation and genetic disorder. These are the topics of this chapter. Now you will study one by one about all these topics. As the chapter, the name of the chapter is Principle of Inheritance and Variation. So what are these terms? कुछ terms आप पढ़ेंगे, important terms। पहले आप इनको जरूरी समझना, understand these terms. What is inheritance? Variation, genetics. I have already told you, you are going to study about the genetics। means genetics क्या चीज है? तो inheritance, variation, genetics, heredity, gene, alleles, F1 generation और filial generation। These are some important terms which must be known before studying this chapter. Inheritance, variation, genetics and heredity. What are inheritance? Means you might have seen that in your family also you are suppose siblings, भाई और बहन है घर में, तो वो कुछ सिमिलरिटी भी रखते हैं, कुछ डिफरेंस भी रखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कैरेक्टर आपके अपने फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके अपने मदर से। कैरेक्टर से मतलब यहाँ पर है जैसे कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, योर हाइट, skin color. These are some characters which are transmitted from parents to the offspring. So this process of transmission of character is called inheritance. What is inheritance? The process of transmission of characters or traits like height, skin color, eyes color, shape of hair. There are so many hair color. Some people have straight hair and some people have curly hairs also. So these are called traits. So process of transmission of traits from parents to the offsprings. Offspring means to the progeny, to the children. Offspring word किसके लिए आता है? To the children. This is called inheritance. Now variation क्या है? और variation क्या होता है? ठीक है, in generally sexually reproducing organism some variations arise, means offsprings are not exactly copy of the parents। होता है ना,
जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ gametes. Gametes में क्या होगा? Gametes have nucleus and inside the nucleus there are chromosomes and on the chromosomes genes are located. तो variations क्यों आते हैं? Variation का मतलब है difference in the character. एक ही फैमिली के लोग हैं, आपस में बहुत कुछ मिलते भी हैं, आपस में बहुत कुछ क्या होता है? डिफर भी होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन. कोई भी प्लांट्स के केस में भी आप देख लीजिए, द प्लांट एंजियोस्पर्म्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावर फ्रूट्स आर फॉर्म, बट जो फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं वो एक ही पेड़ क्या होते हैं? कुछ डिफरेंस भी होगा उनमें, तो दिस इज वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ among the individual of same species. ठीक है, suppose we are human being and we belong to the same species, even then we are differ from each other. Parents, families एक दूसरे से बहुत कुछ डिफर होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस. It means variations are the differences among the individual of same species. This is called variation. Now come to genetics. What is genetics? In higher classes you will study in very detail genetics. तो genetics क्या है? What is genetics? Genetics is the branch of biology in which the study of inheritance and variation is done. Study of inheritance and variation is done. Inheritance and variation. Just now I told you the definition. What is inheritance and what are variations? तो variation और inheritance की study biology की branch है, उसमें हम करेंगे. This is called genetics. Means genetics is the branch of biology in which the study of inheritance and variation is done. Right? This definition is clear. Now what is heredity? What is this heredity? Heredity again same, transmission of characters. Transmission of characters. Characters like resemblance. कौन किससे कितना कितना मिलता है? Resemblances. Variations कितना वो डिफर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? This is called heredity. Transmission of characters like कौन से? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर लाइक रिजेम्बलेंस एंड वेरिएशन. दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. फ्रॉम पेरेंट्स यू कैन ऑल्सो एड हियर द वर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग वर्ड इज क्लियर. ऑफस्प्रिंग मीन्स प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स चिल्ड्रन. So the transmission of character like resemblance, variation from parents to the offspring is called heredity. Genetics इन सभी की स्टडी जिसमें हम करते हैं heredity, inheritance, variation, टोटली जो हम स्टडी करेंगे this branch of biology is called genetics. Heredity हो गया. Now what are genes? Genes क्या होते हैं? Genes जीन क्या है? जीन वर्ड इज टेकन फ्रॉम जेनेटिक्स. किससे बनी हुई है? जीन से बनी हुई है ना. जिनमें जीन की स्टडी, जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे. जीन इट इज ए, व्हाट इज ए जीन? इट इज ए हेरिडिटी यूनिट which is required to express a particular trait. Particular trait, or trait means, what do you mean here? The word trait means character which is required to express a particular trait. Character means height, color, shape. प्लांट्स में जैसे कोई भी फ्रूट है उसका क्या कलर, उसका टेस्ट क्या है, दिस इज डिसाइडेड बाय द जीन. तो जीन इज a hereditary unit which is required to express a particular trait. And the term, this term gene किसने दी? The term was gene was coined by biologist William Johnson.
क्या नाम है साइंटिस्ट का? विलियम जॉनसन। कॉइन्ड द टर्म जीन। ठीक है, नाम किसने दिया इसको? जीन होते हैं, क्योंकि मेंडल ने इसको फैक्टर नाम दिया था, अभी आप पढ़ेंगे। पर इसको जो फैक्टर को नाम, क्या चीज होती है जो कैरेक्टर को ट्रांसलेट करती है, द नेम इज गिवन बाय द साइंटिस्ट विलियम जॉनसन। क्लियर है? जेनेटिक्स में भी एक साइंटिस्ट का नाम आएगा यहाँ पर। जेनेटिक्स मैंने जस्ट नाउ आपको बताया, व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the branch of biology in which we study about the inheritance and variation. This term genetics was also given. Term was given by a scientist, biologist William Bettison. ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम बेटिसन, और जिन्होंने टर्म को दिया जीन, द साइंटिस्ट जॉनसन। क्लियर है ये? जीन पढ़ लिया ये। नाउ एलील्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलील्स? बुक को पढ़ेंगे आप खोलकर, उसमें बहुत सारे ब्लैक कलर से हाईलाइट किए हुए वर्ड लिखे हुए हैं। एलील्स क्या होते हैं? जीन पढ़ा आपने, जीन इज द हेरिडिटी यूनिट, एंड व्हाट आर दीज एलील्स? एलील्स आर ए पेयर ऑफ जीन्स which is slightly different. Pair of gene which is slightly different, or you can say slightly different trait of same gene is called alleles. A pair of gene which is slightly different, this is called alleles. Now come to F1 generation, F2 generation, C। अभी जब आप क्रॉस पढ़ेंगे तो आप यहाँ आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी, जीन, inheritance, variation, genetics, heredity, alleles, all these terms are clear? Clear है? Now come to Mendel's law of inheritance. Now the question, who was Mendel? Mendel was, as the name indicates, you are studying this name again and again in this chapter, genetics. So Mendel, Gregor John Mendel is known as the father of genetics. Father of genetics. Who is known as the father of biology? You know, children? Who is known as the father of biology? Aristotle, right? And here the word is, who is known as the father of genetics? Gregor John Mendel. In next chapter evolution में आप पढ़ेंगे who is known as the father of organic evolution, वहां पर आप डार्विन पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो Gregor John Mendel is known as the father of genetics, right? Now Mendel performed his experiment on the garden pea plant. Garden pea plant. ठीक है, अबाउट हिज बायोग्राफी आप अलग से पढ़ लेना, मेंडल कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया था। पर आपने जो इस चैप्टर में पढ़ना है स्पेशली वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट on which plant? In 10th class you have also studied. The name of this plant is garden pea plant, or particularly you can say pea plant. Mendel performed his experiment on the pea plant. ठीक है, the biological name of this pea plant is Pisum sativum. याद है कुछ 10th का? pea plant का biological name क्या है? Pisum sativum. And Pisum sativum has 14 chromosomes. You remember here also chromosome number in Pisum sativum is 14 chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, यू ऑलरेडी स्टडीड मियोसाइट्स, गैमीट्स, डिप्लॉइड सेल, हेप्लॉइड सेल। इसमें पाइजम सटाइवम में 14 क्रोमोसोम, इस डिप्लॉइड प्लांट है ये डिप्लॉइड प्लांट। तो हेप्लॉइड जब गैमीट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा? 7, 14 क्रोमोसोम, इट हैज 14 क्रोमोसोम। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ contrasting character of this pea plant. On which plant Mendel performed his experiment? What is the name of this plant? Pea plant, Pisum sativum. For conducting experiment, he selected 7 pairs of contrasting characters. 7 pair of contrasting character on the pea plant,
by performing this experiment up to the year from 1856 to 1863. Means he performed this experiment for 7 years. 7 years तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे. एंड आफ्टर दैट कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे वो? द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने? ये को याद कर लीजिए, 1856 टू 1863. 1856 टू 1863. ठीक है. एंड दिस 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर, इनको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों. कभी कभी एक नंबर में एमसीक्यू में उसका डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर क्या है ये आएगा. कंट्रास्टिंग का मतलब है कि 2 कैरेक्टर होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एलील्स जिसे आप बोलेंगे. कैरेक्टर्स को मैं यहां पर लिख रही हूं. 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं? 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स. ठीक है. कंट्रास्टिंग ट्रेट में इस तरह से लिखती हूं. यहां पर 1 2 3 4 5 6 7. Mendel performed his experiment on the pea plant by selecting 7 pair of contrasting character of the plant pea plant. तो यहाँ पर कैरेक्टर और डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड लिखूंगी मैं. यहाँ पर ये था सीरियल नंबर, यहाँ आएगा डोमिनेंट ट्रेट और इधर लिख लीजिए रिसेसिव. डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन अर्बन जनरेशन. कहीं पर भी वो अपने को एक्सप्रेस कर दे, दिखाए, तो वो डोमिनेंट होगा. और जो कैरेक्टर हिडन होगा वो क्या होगा? रिसेसिव. द कैरेक्टर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर. तो यहाँ पर 1 देखिए, आप यहां से लीजिए सीड कलर. ठीक है. ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव को मैं आगे बढ़ाती हूँ. आप इस तरह से लेंगे. थोड़ा सा ये दोबारा लिखती हूँ मैं. सीरियल नंबर और यहां पर आप लिखेंगे ट्रेट, और ट्रेट में इधर लिखिए आप डोमिनेंट कौन सा है एंड रिसेसिव. समझ में आएगा बच्चों? तो ट्रेट देखिए, मेंडल ने कौन सा ट्रेट लिया? कलर, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप. पॉड मीन्स फली, मटर की जो फली है वो कैसी है? सीड तो समझ में आ रहा होगा, सीड का क्या कलर है, सीड की शेप क्या है? पॉड कलर, पॉड शेप. फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, हाइट, प्लांट हाइट. कितने कैरेक्टर हो गए? 7 हुए या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स. ठीक है. ये ट्रेट लिए. अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है सीड कलर. सीड, ठीक है. मटर, मटर खाते हो ना? मटर की चाट वाट खाइए. क्या कलर होता है सीड का? सीड कलर येलो, ग्रीन. सीड शेप, सीड शेप में सीड राउंड है या रिंकल्ड है? राउंड. ठीक है, बिल्कुल राउंड है ऐसे, रिंकल्ड. इस तरह से सिकुड़ा सा सीड है. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिंकल्ड. पॉड कलर, फली, मटर की फली का क्या कलर है? आपको अच्छी तरह ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. यहाँ पे सीड कलर कैसा है? डोमिनेंट यहाँ पर येलो, और यहाँ पे पॉड कलर आएगा ग्रीन. ये मैं आपको भी दिखाऊंगी. मटर की ग्रीन फली आती है नहीं, मटर जो आप सब्जी बनाते हो तो कैसा मटर का ध्यान से करिए. तो ग्रीन होता है ना, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए. अगर आपको पॉड कलर याद रहेगा तो सीड कलर इसका उल्टा होगा तो याद रहेगा. ठीक है बच्चों. तो पॉड कलर कैसा है? ग्रीन, और इसका रिसेसिव कैरेक्टर कैसा होगा? येलो. पॉड शेप, मटर की फली फुल है, पूरी भरी हुई है या पिचकी हुई है. कुछ फलियां होती है ना जिनसे सीड नहीं निकलते. कंस्ट्रक्टेड. फ्लावर कलर, फ्लावर कलर वायलेट है या व्हाइट है. ठीक है. मटर पे जो फली पे उसका कलर आ रहा है, मटर पे फूल का कलर वायलेट है या व्हाइट है. फ्लावर पोजीशन, अब फ्लावर किस पोजीशन में लगा हुआ है? एक्सियल है या टर्मिनल है. प्लांट हाइट, प्लांट टॉल है या ड्राफ्ट है, शॉर्ट है. ठीक है. फिर से देखो,
सीड कलर येलो या ग्रीन। तो मैं देखो आपको कुछ लाई की हूँ, ये कलर है मेरे हाथ में, कोशिश करें आप देखने की ये कैसे कलर है, येलो, ठीक है, येलो कलर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है मेरे हाथ में, येलो कलर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर। थोड़ा आप जब एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है आपको रिकॉल हो जाए कि मैडम ने कुछ दिखाया था, वो सीड का कलर कैसा था, येलो, ठीक है। और अदरवाइज ग्रीन, ये प्रैक्टिकल में भी आपको दिया जाता है, स्पॉटिंग में दिया जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो निकलवाया जाता है, जीनोटाइप को फिनोटाइप बताइए, ठीक है। तो सीड कलर कैसा है, येलो, रिसेसिव कैरेक्टर इसका कैसा है, ग्रीन। सीड शेप, सीड की फली, इसका जो मटर है ये राउंड है या कुछ इसमें ऐसे सीड होंगे, अगर आप उनको सेलेक्ट करेंगे तो रिंकल्ड दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। पॉड कलर, अब बच्चों देखो ये मटर की फली मेरे हाथ में ग्रीन दिखाई पड़ रही है आपको, ग्रीन कलर है इस फली का, ये सारी फलियां कैसी हैं, ग्रीन कलर की है नहीं, तो ये तो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो मटर की हम सब्जी छीलकर बनाते हैं वो मटर ग्रीन कलर की होती है, येलो तो नहीं होगी ना, ध्यान रखना। येलो कब होगी, जब ये पक जाएगा, इसका पॉड का जो पेरिकार्प है, जब ये क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी, तो ये येलो कलर हो जाएगा, उसका ड्राई हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगी, इसके सीड बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि इसका पॉड का कलर कैसा है, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, ठीक है। येलो है नहीं तो ग्रीन है, आपको याद रहेगा डोमिनेंट कैरेक्टर। और वैसे भी याद रखो कि जो मटर की फली हम छीलकर सब्जी बनाते हैं उसका कलर ग्रीन होता है, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब पॉड शेप, पॉड शेप में ये देखिए मेरे हाथ में दो फली है, ये देखिए दिख रही है, यहाँ पर देखिए ये फली पूरी भरी हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है दानों से, सीड अंदर है, और ये फली देखिए इसकी क्या पोजीशन है। अगर आप इसको छीलेंगे, इस पॉड को छीलेंगे तो इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टिव बीच की कुछ भी अब दाने नहीं निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है, फुल, दिस पॉड इज फुल एंड दिस इज कंस्ट्रक्टेड। ये दोनों कैरेक्टर समझ में आ गए, फुल कंस्ट्रक्टेड, क्या है ये, पॉड शेप। फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक को पढ़ेंगे आप। और फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल का क्या मतलब है, एक्सियल एंड टर्मिनल, सपोज दिस इज द पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट में टेंडल भी होते हैं, लीफ टेंडल होते हैं, और अगर फ्लावर साइड से लगा हुआ है, क्या लगा है ये, फ्लावर साइड से लगा हुआ है, साइड फ्लावर है, तो आप इसे एक्सियल बोलेंगे, साइड से लग गया। अब मान लो ये प्लांट आगे बढ़ता चला जा रहा है, कोई ऐसा प्लांट है और ऊपर जाके उसमें फ्लावर लगा, टॉप पर बिल्कुल जाके टर्मिनेट फ्लावर लगा, तो आप उसे बोलेंगे टर्मिनल। समझ में आया, ये फ्लावर कैसा है, टर्मिनल। और अगर फ्लावर यहाँ साइड से लगा हुआ है तो आप इसे क्या बोलेंगे, एक्सियल। आया डिफरेंस समझ में। फ्लावर पी प्लांट है, उसके बिल्कुल मेन ब्रांच में फ्लावर लगा हुआ है, जिसे रेसिमोस और साइमोज इन्फ्लोरेंस आपने पढ़ा हुआ है ना। साइमोज में क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर बन जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे फ्लावर ऊपर जाके लग गया तो ये फ्लावर कैसा होगा, टर्मिनल। और अगर वो साइड से लगा है तो होगा एक्सियल, ठीक है बच्चों। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट मटर के फील्ड में आप जाके देखोगे कि प्लांट टॉल है या प्लांट कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। तो टॉल या ड्राफ्ट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। These some characters selected by the Mendel to perform its experiment, and the plant selected for this, क्या नाम इस प्लांट का, pea plant, and biological name of this pea plant is Pisum sativum, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पर मैंने एक लिख रखा है ट्रेट, और दूसरा इसका नाम क्या होगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ समझ में आ रहा है, कैरेक्टर से मतलब है जो प्लांट शो कर रहा है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव है, जब हम इनका एक्सपेरिमेंट मेंटल करेंगे, कौन सी जनरेशन ने मान लो जैसे सीड्स को बोया तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड समझ में आ गया आपको। ट्रेड के अलावा एक दो टर्म्स और बची हुई है, जैसे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन और फीमेल जनरेशन। Punnett square, Punnett square, homozygous, heterozygous,
टर्म्स हैं फिर से, जैसे पहले आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई थी, ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। F1 जनरेशन या F2 जनरेशन क्या होती है? देन पुनेट स्क्वायर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, F1 जनरेशन का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे मेंडल इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड in Mendel experiment, Mendel selected or Mendel crossed the plant of tall, height tall and dwarf plant. ठीक है, आपने ये तो पढ़ा हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक कैरेक्टर को लिया टॉल और इसको क्रॉस किया ड्राफ से, मींस जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखोगे बिकॉज जीन आर आल्सो इन पेयर, एंड ड्राफ रिसेसिव कैरेक्टर को आप स्मॉल लेटर से लिखोगे। दबी हुई चीज तो नीचे उस स्मॉल लेटर से आपने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या चीज समझ रहे हैं आप? F1 जनरेशन क्या होती है? When Mendel crossed this tall plant with dwarf plant, then in F1 generation, capital T and small t means alleles बने, but they are different. It means all the plant were tall. ठीक है, तो F1 जनरेशन ये हुई जो पहले क्रॉस करके बनाई जाएगी, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, राइट? और इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, सपोज दिस, when they are crossed further, then the generation will form which is called F2 generation, and next is so on like this. So F1 generation or Phylid generation. Punnett cross means what is Punnett square? Punnett was a scientist who he presented a graphical representation to calculate the possibility of the genotype in the progeny. Right? ये जो मैंने क्रॉस बनाया है, it was discovered by Punnett, so this cross is also called Punnett square. और इसको इस तरह से ही बनाते हैं कभी-कभी sometime चेकरबोर्ड मेथड से, जैसे सपोज मैंने एक टॉल को इस तरह से कर दिया लाइक दिस, या इसको क्रॉस इस तरह से भी बना सकते हैं ऐसे, तो भी आप इसे पुनेट स्क्वायर बता सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड समझ में आता है। चेकरबोर्ड मेथड या चौकोर मेथड से भी आप बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज डेवलप्ड बाय हिज बायोलॉजिस्ट पुनेट, सो दिस स्क्वायर इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। क्लियर है? नाउ होमोजाइगस, होमोजाइगस कैपिटल टी लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल टी लिखा हुआ है, मीन्स दिस इज प्योर टॉल एंड दिस इज प्योर ड्राफ। Homozygous, zygous means when the same type of gametes produced, purity of character is called homozygous. Heterozygous is this, heterozygous capital T small t यहाँ लिखा हुआ है, it means character is hybrid. When the offspring show the hybrid character, this condition is heterozygous. When the individual show purity of the character, this condition is homo, means होता है same. ठीक है ना, purity of character को क्या बोलेंगे हम? When the alleles show the purity of the character, this is homozygous. Heterozygous, they show the hybrid character, heterozygous. Genotype का क्या मतलब है? Genotype में जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल टी को जीन फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कैपिटल टी दो बार, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी? लाइक दिस और दिस, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी? लाइक दिस कंडीशन इज हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड्स। जीनोटाइप, दिस इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम जीन फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप का मतलब क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट टॉल हमें देखने में कैसा लग रहा है, ये प्लांट ड्राफ है, ये फ्लावर रेड है, ये फ्लावर वायलेट है, तो जो चीज दिखाई पड़ती है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस of an organism is known as phenotype. ठीक है, suppose this pod is in my hand, what its color? Green. You can easily identify it. This color, its color is green and it is full of seed, right? तो ये क्या है इसका? फिनोटाइप। देखने से हमें कैसे पता चल रही है ये इसका फिनोटाइप है। ठीक है, अब जीनोटाइप तो नहीं दिखेगा, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो ये कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है और ये हाइब्रिड भी हो सकते हैं। तो जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो ये टर्म्स थी पुनेट स्क्वायर। पुनेट कौन थे? बायोलॉजिस्ट थे, हु रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ये बनाए हुए हैं यहाँ पर। होमोजाइगस, प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर, जीन
So the same character, same purity of line. Heterozygous hybrid combination. Hybrid means mixture of the character, neither dominant nor recessive, but show जो भी हो genotype, genetic constitution, phenotype, physical appearance of the organism. ठीक है? Now another कुछ और टर्म्स बची हुई हैं अभी इसमें चैप्टर में. टर्म बहुत है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. What is monohybrid cross? Mendel performed his experiment. मेंडल एक्सपेरिमेंट, आप बच्चे इस बात का ध्यान रखना, अभी आप केवल मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट मींस व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो क्रॉस मींस का क्या मतलब है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना है, इसलिए इस वर्ड में आया मोनो. मोनो मींस क्या होता है? वन. इट मींस द क्रॉस विच इज मेड between a pair of contrasting character. बताइए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, the cross which is made between a pair of contrasting character, this cross is called monohybrid cross. Just now I drawn a diagram here. Mendel made the cross between the tall plant with dwarf, right? एक ही करेक्टर लिया हुआ है यहाँ पे, tall and dwarf, एक ही कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया हुआ है. So this cross is called monohybrid cross. And what is dihybrid cross? Dihybrid cross. Di means क्या होता है? दो. It means the cross which is made between two pairs of contrasting characters. Two pairs of contrasting characters. Children, you remember here in board exam, in 5 marks question, dihybrid cross is generally asked. कैसे इसको बनाते हैं ये कोई रटना नहीं है, आपने केवल इस क्रॉस को आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा. तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस विच इज मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर. मींस मेंडल के जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं उनमें से कोई भी 2 पेयर ले लो. सपोज आप ले लो टॉल प्लस दूसरा इसका कंट्रास्ट कौन सा? ड्राफ्ट. हियर यू कैन सेलेक्ट द फ्लावर कलर. फ्लावर कलर कौन सा था? मेंडल ने जो सेलेक्ट किया वायलेट एंड व्हाइट, राइट? और इसके अलावा एनी 2 पेयर यू कैन सेलेक्ट. ये तो मैंने 2 पेयर आपको बता दिए. सपोज राउंड एंड येलो. शीट शेप क्या थी? राउंड, और उसका कलर क्या था? येलो. आर बाई का मतलब क्या है यहाँ पे? राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो क्या है ये? राउंड एंड येलो. राउंड चीज क्या होगी? सीड होगा. ये सीड का शेप क्या है? सीड का कलर क्या है? दूसरा इसका कंट्रास्ट लेना है रिंकल्ड. ये क्रॉस आपकी बुक में भी दिया हुआ है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है? इट मींस 2 कैरेक्टर ले लें यहाँ पर. एक कैरेक्टर है राउंड, तो इसका क्या है? कंट्रास्ट रिंकल्ड. दूसरा कैरेक्टर है येलो, तो इसका कंट्रास्ट दूसरा क्या है? ग्रीन. इसका क्रॉस आपको बाद में मैं बताऊंगी. तो यहाँ पर मैं केवल आपको आई वांट टू टेल यू हियर ओनली व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस. So what is dihybrid cross? The cross which is made between 2 pairs of contrasting character. This cross is called dihybrid cross, right? Monohybrid cross, dihybrid cross. Another tests are also there. Cross, test cross, back cross, reciprocal cross. मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया? क्रॉस इज मेड बिटवीन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. डायहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 pairs of contrasting character. And here the word test cross is also very important question. ये हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आया, इस बार भी आया ये, ठीक है? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या है? क्यों करते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस इज डन, इट इज डन to know the
to know the genotype of unknown parents, unknown individual और टेस्ट क्रॉस किसके बीच में कराते हैं, इसका ये यूज है, इज डन टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल। क्या है ये टेस्ट क्रॉस का यूज, एंड व्हाट इज डेफिनेशन, हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। दिस क्रॉस इज डन between the hybrid individual, just now जैसे मैंने अभी बताया ये hybrid है, hybrid individual, this cross is done between the hybrid individual of F1 generation to the recessive parents। ठीक है, इसके बीच में कराया जाएगा हाइब्रिड जनरेशन, F1 जनरेशन की जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है उसको रिसेसिव पेरेंट्स से कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल हियर F1 जनरेशन टॉल क्रॉस किससे किया, ड्राफ्ट से, देन कैसे बनाते हैं इसको, क्रॉस कैसे करते हैं, इस तरह से देखिए आप पहले इसको समझिए। ये डिप्लॉयड पेरेंट्स है, ठीक है, क्या है ये पेरेंट्स, दे विल फॉर्म गैमेट like this, क्या बना रही है gametes। When gametes are fused, capital T small t, there is also capital T small t, it means this is F1 generation, and here the tallness is expressed, this character is tall, this character is, in F1 generation all the phenotype, all the individual were tall, सारे कैसे होंगे, सब टॉल, ठीक है, सारे टॉल थे। वेंटल ने भी एक्सपेरिमेंट किया तो F1 जनरेशन में सारे टॉल बट हाइब्रिड हेट्रोजाइगस, ठीक है। इस F1 जनरेशन को किससे क्रॉस कराना है, रिसेसिव पेरेंट से कराना है सपोज, ठीक है, तो कैसे कराना है इसको, कौन सी F1 जनरेशन है, कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हाइब्रिड F1 जनरेशन को, सपोज यहाँ पे तो मैंने टॉल और ड्राफ्ट लिख दिया है, तो कभी कभी नहीं हो कि what is this cross called to know the genotype of unknown individual, then this cross is called test cross, and how it is done, hybrid is crossed with recessive parents, again separate the gametes, बन गए ये। Now with the use of Punnett square or checkerboard method, checkerboard method is better than स्क्वायर लाइक शेप, ठीक है, आप इसको स्क्वायर में बना सकते हैं, चेकरबोर्ड मेथड बोलते हैं, ये इजी पड़ता है, आसानी से समझ में आ जाता है। अब ये पेरेंट्स मान लो ये मेल है, गैमेट्स हैं या पॉलिग्रेम है, और ये फीमेल के हैं, तो आप इसे लिखेंगे कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, इसको आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ इधर इस तरह से करा, से मल्टीप्लाई करिए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आ रहा है बच्चों, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा बनेगा स्मॉल टी, इट इज ऑल्सो स्मॉल टी, इट मीन्स 50% ये क्या आ गए टॉल, फिनोटाइप टॉल, और ये 50% क्या है, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ड्राफ्टनेस कर रहे हैं, इट मीन द रेशो इज 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशो हमेशा 1:1 आता है, ठीक है। कभी कभी इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि एक क्रॉस में रेशो 1:1 रेशो आ रहा है, व्हाट इज दिस क्रॉस इज कॉल्ड, डिफाइन इट एंड गिव एन एग्जांपल एंड डिजाइन इट। तो आप इसे लिखेंगे, इसका यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आया है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस भी बोर्ड एग्जाम में आया है, इट मींस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्रॉस इज डन बिटवीन द हाइब्रिड इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन टू द रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपने क्रॉस कर लिया, टॉल और ड्राफ्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया है, सारे कैसे हुए टॉल बट हाइब्रिड को क्रॉस कर दिया आपने रिसेसिव पेरेंट्स से। ध्यान दो, यहाँ पर हाइब्रिड F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है, रिसेसिव जनरेशन, तो ये बैक पीछे जाना है आपको, इट मींस ये क्रॉस कौन सा होगा, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का जो रेशो आता है फिनोटाइपिक रेशो वो 1:1 आता है, ठीक है, 50-50% आते हैं। कल आपको बताएंगे हम बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। इतना बहुत है, आप बैठ के करेंगे, इसे ढंग से पढ़ेंगे, इसमें कोई टर्म समझ में नहीं आ रही हो, कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।